جب خدا نے اپنے لوگوں کو شریعت بخشی تو اس نے ایک آئینے کا کام کیا اور ان پر ظاہر کیا کہ وہ کس قدر گنہگار ہیں اور انہیں آنے والے نجات دہندہ کی کس قدر ضرورت ہے۔ لیکن جب تک کہ وہ آ نہ جاتا، خدا نے ان کے گناہوں کے کفارے کے لیے ایک راستہ مہیا کیا، ایسا راستہ جس سے ان کی سزا ان سے ٹل جائے، جب تک کہ نجات دہندہ ایک روز ان کے گناہوں کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کر دے۔ صدیوں تک خدا نے اپنے لوگوں کو آنے والے نجات دہندہ سے متعلق سینکڑوں پیشین گوئیاں دی۔ یہ پیشین گوئیاں خدا کے کلام میں موجود ہیں۔ جو نجات دہندہ کا انتظار کر رہے تھے وہ اسے مسح کیا ہوا یا آنے والا مسیح کہتے تھے۔ 150 قبل مسیح میں خدا کا کلام یونانی زبان میں ترجمہ ہو چکا تھا اور ہر وہ شخص جو یونانی بولتا تھا مسیح کے بارے میں نبوتوں کو پڑھ سکتا تھا جو رہائی دلائے گا۔ اور جب ساری دنیا رومی سلطنت کے زیر سایہ آ گئی تو انہوں نے ایک مشترکہ زبان رائج کر دی جس کے وسیلے سے لوگ ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے تھے، وہ تھی یونانی زبان۔ انہوں نے سڑکیں اور سمندری گزرگاہیں بنائیں جن کے ذریعے تمام جدید دنیا سے رابطہ ہوا۔ نتیجے میں اب ہزاروں لوگ ایک دوسرے سے منسلک ہو گئے اور ایک مشترک زبان بولنے لگے۔ خبریں اس سے پہلے کبھی اتنی تیزی سے نہیں پھیلی تھیں۔ آئندہ کیا ہونے والا ہے سلطنت میں آگ کی طرح پھیلتا جاتا اور ساری دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیتا۔ یہ تمام واقعات بڑی احتیاط کے ساتھ چشمدید گواہوں کے وسیلے 4 مختلف کتابوں میں درج ہیں۔ ان 4 کتابوں کو یوان گیلین کہا جاتا ہے جس کا یونانی ترجمہ ہے انجیل یا خوشخبری، اور یہی پیغام وہ پھیلا رہی ہیں۔ رومی سلطنت میں قوم بنی اسرائیل میں ناصرت کے ایک چھوٹے قصبے میں ایک جوان عورت رہتی تھی جس کا نام مریم تھا۔ متی 1:18 کہتی ہے، مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی۔ وہ اور اس کا منگیتر یوسف دونوں خدا پرست تھے۔ اور متی 1:19 کہتی ہے، یوسف راست باز تھا۔ یہ لفظ کسی ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے گناہ خدا معاف کر دیتا تھا۔ لوکا 2:24 کے مطابق مریم خود اپنے گناہوں کی قربانی کے لیے قمریوں کا جوڑا یا کبوتر لائی۔ لوکا 1:47 میں مریم نے کہا، میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی۔ مریم کو نجات دہندہ کی ضرورت تھی۔ وہ اور یوسف بنی اسرائیل کے ان تمام لوگوں سمیت جو خدا سے پیار کرتے تھے یقیناً اپنے منجی نجات دہندہ مسیح کی آمد کی تڑپ دل میں رکھتے تھے، لیکن مریم اور یوسف تصور نہیں کر سکتے تھے جو کچھ ہونے والا تھا۔ لوکا 1:26 کہتی ہے کہ خدا نے اپنے فرشتے جبرائیل کو بھیجا تاکہ مریم کو ایک اہم پیغام پہنچائے۔ مریم خوف زدہ تھی، لیکن 30ویں آیت میں جبرائیل نے مریم سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالی کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ تقریباً 1000 سال پہلے خدا نے داؤد بادشاہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ مسیح اس کی نسل سے ہوگا، اور اب فرشتہ مریم کو بتا رہا تھا جو کہ داؤد کی نسل سے تھی کہ اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام یسوع ہوگا، اور وہ ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم ضرور حیران ہوئی ہوگی۔ یہ ان سب پیشن گوئیوں کے پورا ہونے کا لمحہ تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا بنی اسرائیل کو انتظار تھا۔ مریم نے فرشتے سے کہا کہ یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی۔
फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। खुदा ने एक कंवारी को चुना, एक ऐसी औरत जो कभी किसी मर्द से आशना ना थी, कि वो मसीह की मां बने। खुदा अपना पहला वादा पूरा कर रहा था जो उसने आदम और हव्वा से निजात दहिंदा से मुतल्लिक किया था। पैदाइश 3:15 में खुदा ने वादा किया था कि एक दिन एक बेटा पैदा होगा जिसका बाप कोई इंसान नहीं होगा, और वो शैतान के सर को कुचलेगा और इंसानियत को आजाद कराएगा। मत्ती की इंजील में लिखा है, ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो, कि देखो एक कंवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। मरियम जरूर इस बात को काबिले इज्जत समझती होगी कि उसके पेट में मसीह है, लेकिन ये बात इतनी आसान भी नहीं थी। उस जमाने में इसराइल में अगर एक गैर शादीशुदा लड़की हामला हो जाती तो ये ना सिर्फ शर्म की बात थी बल्कि उसे कबूल भी ना किया जाता और संसार तक कर देते। यकीनन नासरत जैसे छोटे कस्बे में हर कोई हामला मरियम के मुतालिक बात करता होगा। यूसुफ भी महसूस करता होगा कि उसे बेवफाई की गई है और परेशान हो। यूसुफ का मरियम के साथ जिस्मानी ताल्लुक नहीं रहा था, वो जानता था कि वो उसका बच्चा नहीं है। मत्ती 1:20 और 21 आयत कहती हैं कि यूसुफ चुपके से मंगनी तोड़ देने के बारे में सोच रहा था कि खुदा ने मुदाखलत की। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावन के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दुस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। जरा सोचिए कि यूसुफ ने कैसा महसूस किया होगा जब उसे पता चला कि जो बच्चा मरियम के पेट में है वो बड़ा होकर उनका मसीहा बनेगा और जो उनको उनके गुनाहों से निजात देगा। मत्ती 1:24 कहती है कि यूसुफ ने खुदा की फरमाबरदारी की और फौरन अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया। यीशु की पैदाइश के बाद यूसुफ और मरियम ने शादी करके मियाँ बीवी की तरह नॉर्मल अज़दवाजी जिंदगी गुजारनी थी। उनके बच्चे भी हुए जिनके नाम हमें मत्ती 13:55 में लिखे हुए मिलते हैं और बाइबल में दीगर जगह भी इनका जिक्र है। लेकिन जब तक मरियम ने यीशु को जन्म ना दिया, मत्ती 1:25 कहती है, यूसुफ ने उसको ना जाना जब तक कि उसके बेटा ना हुआ। यूसुफ और मरियम की शादी के बाद उन्हें और भी गैर मतवक्को खबरें सुनने को मिली। लूका 2:1 हमें बताती है, उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर औगुस्तस की तरफ से हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। क्योंकि यह हुकूमत वक्त का फरमान था, लिहाजा सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया, जो यहूदिया में है,
क्योंकि वो दाऊद के घराने और औलाद से था। एक हामिला औरत के लिए ये बहुत ही बेवक्त बात थी कि वो नासरत में अपना घर छोड़कर बैतलहम की जानिब जो 80 मील के फासले पर था सफर करे, जो कि उसके आबाओ अजदाद का शहर था। लेकिन ये खुदा के कामिल मंसूबे का हिस्सा था। 600 साल पेशतर खुदा ने मीका नबी की मारिफत पेशन गोई की थी, जिसमें उसने कहा था कि मसीह बैतलहम के कस्बे में पैदा होगा। जब वो वहाँ थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़ा हमल का वक्त आ पहुँचा। ताहम यूसुफ और मरियम को सराय में ठहरने की जगह नहीं मिली। मौऊदा मसीह पैदा होने को था और दुनिया अपने कामों में मसरूफ थी या उसे ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं थी। लूका 2:7 कहती है, और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह न थी। वो बादशाह जिसने अबद तक राज करना था, एक महल की बजाय कपड़े में लिपटा चरनी में सो रहा था। वो इस तरह से आया जिसकी तवक्को किसी को न थी। रात की खामोशी में, किसानों की निगहबानी में, एक बहुत ही मामूली से माहौल में। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गले की निगहबानी कर रहे थे। गालिब इम्कान है कि ये वो भेड़ें थीं जो कुर्बानी के लिए हैकल में गुजरानी जाती थीं, लेकिन उस रात वो जो उनको गुनाहों से बचाएगा पैदा हो चुका था। लिहाजा अब मजीद किसी कुर्बानी की जरूरत बाकी नहीं होगी। खुदा ने अपनी हाकमियत में इन चरवाहों को चुना कि वो अव्वलीन लोग बने जिन्होंने निजात दहिंदा के इस दुनिया में आने की खुशखबरी सुनी। लूका 2:9 से 11 आयत कहती है, और खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनंजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। यूनानी में मसीह के लिए लफ्ज मसाया है। लिहाजा आप अंदाजा कर सकते हैं कि चरवाहे किस कदर खुश हुए होंगे ये सुनकर के मसीह यानी मसाया पैदा हो चुका है, वो आ चुका है। और फरिश्तों ने कहा कि ये खुशखबरी सारी उम्मत के वास्ते होगी। यीशु तमाम इंसानों के लिए निजात दहिंदा बनकर आया। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है और जिसके खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चरनी में पड़ा पाया। लेकिन ये कोई आम बच्चा नहीं था। बाइबल बड़े वाज़े अंदाज में बयान करती है कि यीशु खुदा है। फिलिपियों 2 बाब की 6 और 7 आयत में यीशु के बारे में लिखा है, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया। यीशु खुदा है, लेकिन मसीहा बनने के लिए उसने खादिम की सूरत इख्तियार की। वो जमीन पर इंसानी शक्ल में आया। इब्रानियों 2 बाब की 14 आयत में यूं लिखा है, बस जिस सूरत में लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ। जिसने कायनात को खल्क किया, दुनिया में इंसान की शक्ल में आया, खालिक खुद मखलूक का हिस्सा बन गया। जिसने अपने मुंह के कलाम से सितारों को पैदा किया,
जमीन पर इंसान बनकर आ गया और चरनी में पड़ा हुआ था। कलाम यानी यीशु मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता और वाहिद बेटा जो बाप की गोद में है, उसी ने जाहिर किया। आखिरकार मरियम और यूसुफ वापस नासरत को लौटे, लेकिन इस मौके पर बाइबल में यीशु की अवाइल उम्री की जिंदगी की कोई तफासील मौजूद नहीं है। लूका एक वाकया दर्ज करता है जो उस वक्त हुआ जब यीशु 12 साल का था। बाइबल इस मामले में बहुत वाज़ेह है कि अगरचे यीशु खुद खुदा है, लेकिन दुनिया में अपनी उम्र के 30 बरसों के दौरान यीशु ने कोई मौजज़ा ना दिखाया और ना ही अपनी इलाही कुदरत को जाहिर किया। क्या यह हैरान कुन नहीं है कि यीशु जो कामिल जलाल में रहता था, आसमान पर जिसकी सिताइश होती थी, इस दुनिया में आया और मिट्टी में अटी हुई गलियों में आम लोगों की मानद चलता रहा। 30 बरस तक उसने लोगों के दरमियान एक आम जिंदगी गुजारी। लेकिन क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? इब्रानियों 4 बाब की 15वीं और 16वीं आयत के मुताबिक यीशु के मेरी और आपकी तरह इस दुनिया में जिंदगी गुजारने की वजूहात में से एक वजह ये थी कि हम उस पर एतमाद करने के लायक बन सकें और अपनी जरूरत के वक्त मदद के लिए उसके पास आ सकें, ये जानते हुए कि यीशु हमें अपना प्यार जरूर दिखाएगा। कतई नजर इसके कि आप किन हालात में से गुजर रहे हैं, यीशु जानता है। वो जानता है कि स्कूल जाने की मुश्किलात क्या हैं या खानदानी मसाइल क्या होते हैं। वो जानता है कि जब आपके वालिदैन ही आपको गलत समझें तो क्या महसूस होता है, या किसी रिश्ते को निभाने में किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। यीशु को काम भी करना पड़ा और उसे जिंदा रहने के लिए जिद्दोजहद करना पड़ी। उसने हमारे जूते पहने और जमीन पर मिट्टी से भरी गलियों में पैदल चलता रहा, और उसने ये सब आपके लिए किया। जब यीशु 30 वर्ष का हुआ तो अब वक्त आ गया था कि दुनिया को मालूम होता कि वो ही मसीहा है। मत्ती 3:1 कहती है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में मुनादी करने लगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नबी था जो खुदा की तरफ से भेजा गया था ताकि वो लोगों को मसीह के लिए तैयार करे। मत्ती 3 बाब 2 आयत कहती है, उसने लोगों की मिन्नत की, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा इस लफ्ज का यूनानी में मतलब है कि अपने ज़हन को बदलना। देखें, बहुत से लोग सोचते थे कि उन्हें इसी हालत में आसमान पर कबूल कर लिया जाएगा, उनके अच्छे कामों या उनकी कौमियत की बिना पर या उनकी मजहबी रस्मों के सबब से। लेकिन ये नजरिया गलत था। बाइबल हमें 10 अहकाम में बताती है कि हम गुनाहगार और मुजरिम हैं। यूहन्ना ने लोगों को बताया कि उन्हें तौबा करने की जरूरत है, दूसरे अल्फाज में अपने जहनों को बदलने की जरूरत है और ये एहसास करने की कि वो आसमान पर जाने के लायक नहीं है। उन्हें इकरार करना है कि वो गुनाहगार हैं जिन्हें एक निजात दहिंदा की जरूरत है। अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाए यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। जो यूहन्ना के पैगाम के साथ मुत्तफिक थे, उन्होंने दरियाए यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। इस बपतिस्मा से उन्हें निजात नहीं मिल गई और ना ही उनके गुनाह धुल गए। बपतिस्मा उनका ज़ाहरी अमल था जिससे पता चलता था कि उन्होंने इकरार किया कि वो गुनाहगार हैं और वो आने वाले मसीहा के मुंतज़िर हैं। खुदा ने यूहन्ना को भेजा कि वो मसीह के लिए लोगों को तैयार करे और उन पर जाहिर करे कि मसीह कौन है। यूहन्ना 1:33 के मुताबिक खुदा ने यूहन्ना को बताया कि जब वो रूह कुदूस को ज़ाहरी सूरत में एक शख्स पर उतरते देखे तो वही शख्स मसीह होगा। उस वक्त यीशु गलील से नासरत को आया
और दरियाए यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। यीशु यूहन्ना से बपतिस्मा लेने आया था, इसलिए नहीं कि वो गुनहगार था, बल्कि इसलिए कि यूहन्ना उसे पहचान सके कि वही मसीह है। और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आया तो फिलफौर उसने आसमान को फटते और रूह को कबूतर की मानंद अपने ऊपर आते देखा। और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। मैं तसव्वुर कर सकता हूं कि यूहन्ना का दिल जोर से धड़क रहा होगा जब उसने रूहुल कुद्स को ज़ाहिरी सूरत में यीशु पर उतरते देखा और उसे मालूम हुआ कि जो निशान खुदा ने उसे दिया था वो पूरा हुआ। यीशु ही मौऊदा मसीह था। जैसे ही रूहुल कुद्स यीशु पर उतरा तो बाप ने बाआवाज ऐलान किया कि वो यीशु से बहुत खुश है। और देखें, उस रोज इर्द गिर्द जितने लोग खड़े थे सब गुनहगार थे और अपने गुनाह की बदौलत वो खुदा को खुश नहीं कर सकते थे, लेकिन यीशु उनके दरमियान खड़ा था और वही एक था जो खुदा के तमाम अहकाम की मुकम्मल फरमाबरदारी कर सकता था और उसे खुश कर सकता था। लेकिन क्या वाकई यीशु बेगुनाह था? क्योंकि अगर यीशु ने गुनाह किया होता तो वो निजात दहिंदा और उनका मसीहा बनने के लायक नहीं था। यीशु बेगुनाह था और ये हकीकत साबित होने जा रही थी। मरकस 1:12-13 कहती है, और फी अलफूर रूह ने उसे बियाबान में भेज दिया और वो बियाबान में 40 दिन तक शैतान से आजमाया गया। जिस तरह शैतान ने आदम और हवा को गुनाह करने पर उभारा, बिल्कुल उसी तरह शैतान ने यीशु को भी आजमाया कि यीशु को गुनाह करने पर उभारे। लेकिन आदम और हवा के बरक्स यीशु फतहमंद रहा। यीशु ने इब्लीस के आजमाइशों के सामने हथियार नहीं डाले। यीशु ने गुनाह न किया। यीशु ने अपनी पूरी जिंदगी में बिल्कुल उसी तरह सब आजमाइशों का सामना किया जैसे मैं और आप भी करते होंगे। इब्रानियों 4:15 कहती है कि वो भी सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। लूका 1:35 कहती है कि वो मालूद मुक़द्दस होगा, जिसका मतलब है कि वो मुकम्मल तौर पर पाक होगा और उसमें जरा भी बुराई नहीं। सिर्फ यीशु ही खुदा को मुकम्मल तौर पर खुश कर सकता था और सिर्फ यीशु ही गुनाह किए बगैर कामिल जिंदगी बसर कर सकता था। पुराने अहदनामे में खुदा ने अपने लोगों को हदायत दी कि वो कैसे अपने गुनाहों के लिए जानवरों की कुर्बानियां दें। अक्सर औकात एक शख्स अपने इवज़ी के तौर पर एक बर्रा लाता। फिदिया वो होता है जो किसी की जगह लेता है। फिर उस बर्रे को जांचा जाता और इस बात को यकीनी बनाया जाता कि वो खुदा को काबिल कबूल है। उसे लाने वाले शख्स को परखा नहीं जाता था। वो गुनहगार था और वो पहले ही से जानता था कि वो खुदा के नजदीक काबिल कबूल नहीं है, लेकिन उस शख्स के इवज़ी के तौर पर उस बर्रे का बेऐब होना लाजिम था। इसमें कोई ऐब नहीं होना चाहिए था। उस शख्स की जगह उस बर्रे की जांच की जाती थी। उसी तरह जैसे खुदा ने बर्रे को जांचने की इजाजत दी, यीशु भी हमारी जगह आया ताकि परखा जाए हमारे फिदिये के तौर पर। क्योंकि बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यीशु बियाबान से गुनाह और शैतान पर फातेह होकर आया। यूहन्ना 1:29 कहती है, यूहन्ना ने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा लिए जाता है। यीशु खुदा के बर्रे के तौर पर आया ताकि हमारी जगह ले
और हमारा इफ्जी बने। जैसे काहिन सिर्फ कुर्बान होने वाले बर्रे की जांच करता था, खुदा का मंसूबा यह था कि यीशु को हमारे मुतबादिल के तौर पर जांचा जाए, क्योंकि खुदा जानता था कि मैं और आप नाकाम होंगे और हम गुनाह में गिरेंगे और हम उसके अहकाम की कामिल तौर पर फरमाबरदारी नहीं कर सकेंगे। खुदा जानता था कि हमें मुतबादिल की जरूरत होगी और यीशु हमारा वो मुतबादिल बना, क्योंकि सिर्फ यीशु ही खुदा को मुकम्मल तौर पर खुश कर सकता और उसके तमाम हुक्मों पर अमल कर सकता है। यीशु इस दुनिया में वो जिंदगी जीने आया जो आप और मैं नहीं जी सकते थे। यीशु हमारा बर्रा बनने के लिए आया, खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा लिए जाता है। जब खुदा ने एक कंवारी को ये बताने के लिए एक फरिश्ते को भेजा कि वो मसीहा को जन्म देगी, तो ये उस पहले वादे की तकमील थी जो खुदा ने आदम और हवा के साथ किया था। खुदा ने उन्हें बताया था कि एक निजात दहिंदा बगैर इंसानी बाप के पैदा होगा, जो बड़ा होकर शैतान के सर को कुचलेगा। यीशु ही वो माऊद निजात दहिंदा है जिसके बारे में तमाम अंबिया ने लिखा था और लोग बरसा बरस से उसके मुंतज़िर थे। वो आपका भी निजात दहिंदा है। मसीह इस अंदाज में आया जिसकी किसी को तवक्को भी नहीं थी, क्योंकि खुदा खुद जमीन पर इंसानी सूरत में उतरा। यीशु ने अपनी जिंदगी में उन लोगों के गम और खुशियां देखी जिनमें वो रहता था। खालिक खुद मखलूक का हिस्सा बन गया और ये आपकी मोहब्बत में किया गया। खुदा बाप ने ऐलान किया कि यीशु उसका प्यारा बेटा है। वही वाहिद है जो खुदा को मुकम्मल तौर पर खुश कर सकता है। सिर्फ यीशु ही शैतान की आजमाइशों का सामना करके गुनाह के बगैर एक कामिल जिंदगी गुजार सकता था। यीशु को खुदा का कामिल बर्रा बनना था, जिसे दुनिया के गुनाह उठा ले जाने थे। यीशु ने आपकी जगह ले ली ताकि खुदा उसकी जांच आपके मुतबादिल के तौर पर करे।